A 20-meter deep well with a diameter 7 meter is dug, and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform by 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. What does it mean? First, the most important thing in a word problem is you should understand the word problem. Once you understand the word problem, then the rest of the things are very simple. एक बार अगर word problem का meaning समझ में आ गया तो बाकी सब आसान है, पर सबसे important बात है, मुख्य बात है कि उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक वेल है जिसका हाइट है 20 मीटर, डायमीटर है 7 मीटर। इसमें से इसको खोद के क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका लेंथ है 22 मीटर, 14 मीटर और हाइट इसका ढूंढना है आपको, यानी यहाँ की मिट्टी इसके अंदर डाला जा रहा है। व्हाट इज डन इज वी आर डिगिंग अ वेल. After digging the well, we are getting some earth, whatever mud we are getting, that mud we are spreading it in the form of a cuboid, and the length of that cuboidal shape is 22 meter by 14 meter. So you have to find the height. I have told you the golden rule, children. Whenever the diameter is given as 7, you make it as radius is equal to diameter is equal to 7 meters. He has given you. You convert the diameter into radius, that is d by 2, and that is equal to 7 by 2 meters. That is the golden rule. And the important thing here is whatever earth we are taking out from the well, we are spreading it on in the form of cuboid. So the next important thing that you should write down is volume of earth dug. Volume of earth dug from the well. From the well is equal to volume of cuboid, is equal to volume of cuboid. That is very important thing that you should know. Now volume of earth dug, the formula is pi r squared h. This is the height of the well is 20 and diameter is 7, so radius will be 7 by 2, is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. Length into breadth into height. Now you see the value of pi is 22 by 7. The radius is 7 by 2 into 7 by 2 multiplied by the height. The height is 20 meters. Height is 20 meters. Here the length is 22 meters into the breadth is 14 meters multiplied by the height. Now what we will have to do is, you need not have to multiply everything and waste your time. आपका टाइम यहाँ कैलकुलेशन में नहीं करना है, सारा लास्ट स्टेप में आप कीजिए. तो what I'll do here is 22 by 7 multiplied by 7 by 2 into 7 by 2 into 20 multiplied by, this is 22 by 1 I'll write, this is 14 by 1 I'll write it. So this will be equal to 1 by 22 multiplied by 1 by 14. What I have done is I have transposed everything. इसको मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया. ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, राइट हैंड साइड से आई सेंड इट टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ट्रांसपोज. मैंने कर दिया. तो ये 22 कैंसल्स विद दिस 22 चिल्ड्रन, दिस 7 कैंसल्स विद दिस 7. ओके, देन हियर अगेन 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 2s are 14. So what remains here is 2 1s are 2, 2 10s are 20. Again here 2 1s are 2, 2 5s are 10. So this is 5 by 2. And children, 5 by 2 means what? 2.5 meters. That means what? If you take the mud out of it or earth out of it and spread it in the form of a cuboid, the height will be equal to 2.5. So what is the last sentence here? We'll find the height of the platform. So what I'll write here is height of the platform is equal to 2.5 meters. Height of the platform is 2.5 meters. So that's all. Here again a well of diameter 3 meter is dug and 14 meter deep. See, here is a well. एक well है, इसका डेप्थ कितना है? 14 meters है. The earth taken out is spread evenly all around in the shape of a circular ring of width 4 meters to form an embankment.
find the height of the embankment. Here one thing you should understand children, what is the meaning of it? Try to understand the meaning in Hindi and English also. हिंदी में मैं आपको बता दूं कि इसका डायमीटर 3 मीटर है और इसका हाइट है 14 मीटर। अब ये जो मट्टी इस वेल में से निकल रहा है, उस मट्टी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था, क्यूबॉइड शेप में स्प्रेड किया था। यहाँ हम क्यूबॉइड शेप में नहीं स्प्रेड कर रहे हैं, हम वेल के इर्द गिर्द ही डाल रहे हैं ना, गोलाकार। यहाँ मान लीजिए अगर बीच में वेल है तो उसके अगल बगल में ही डाल रहे हैं ताकि उसकी मिट्टी का हाइट जो है वो बढ़ जाए, यानी यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में हो रहा है। तो यहाँ एक सिलेंड्रिकल शेप में बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक बार देख रहा हूँ। हियर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वॉट एवर अर्थ वी आर रिमूविंग फ्रॉम हियर, वी आर स्प्रेडिंग इट अराउंड द वेल इटसेल्फ। मान लीजिए अगर वेल अंदर है तो उस वेल के ऊपर ही हम मट्टी डाल रहे हैं ताकि एक कट्टा बोलते हैं उसको, कट्टा टाइप हो जाए। वेल अंदर रहेगा और उसके ऊपर हाइटेड एक क्या होगा, एम्बैंकमेंट होगा। तो ये आपको बताना है कि उस एम्बैंकमेंट का हाइट कितना होगा। यहाँ पर हमने क्यूबॉइड का हाइट ढूंढा था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम्बैंकमेंट का हाइट ढूंढ रहे हैं। तो एक बात आप देख लीजिए, यहाँ पर दो हाइट आएंगे। एक हाइट हम वेल को हम पकड़ेंगे, एच कैपिटल एच लेंगे हम, कैपिटल एच वेल का होगा और कैपिटल डी वेल का क्या होगा, डायमीटर होगा, और कैपिटल वी वेल का वॉल्यूम लेंगे हम। ओके, कैपिटल वी उसका क्या करेंगे हम, उसका वॉल्यूम लेंगे। तो अब देखिए एस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3/2। डोंट ट्राई टू पुट इट इन डेसिमल फॉर्म, और इफ रिक्वायर्ड वी कैन टेक इट, नो इशू। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसको डेसिमल पॉइंट में भी हम लेने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर क्या है, बाहर का जो ये होगा, यहाँ पर इंटरनल रेडियस हम लेंगे। इंटरनल रेडियस होगा, ये इंटरनल रेडियस हम, इसका वेल का ही इंटरनल रेडियस होगा, और ये इंटरनल रेडियस अगर 1.5 है तो बाहर का रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस जो होगा, इसको हम कहेंगे R1। तो ये R1 होगा इंटरनल रेडियस 1.5 प्लस ये विड्थ, इसका विड्थ कितना है, 4 मीटर है। ये जो मट्टी जो डाला जा रहा है वो कितने मीटर का डाला जा रहा है, 4 मीटर का विड्थ है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर होगा और ये 1.5 मीटर, तो यानी टोटल कुल मिलाकर कितना होगा, 1.5 प्लस 4 यानी कितना होगा, 5.5 मीटर्स होगा। ये बाहर का रेडियस क्या हो रहा है, बाहर का रेडियस होगा, अंदर का रेडियस प्लस ये विड्थ, अंदर का रेडियस है 1.5, ये विड्थ है 4, तो ये होगा 5.5 होगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम वेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। मैं इसका मतलब I'll tell you what is the meaning of that, what I mean by that। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको बताऊंगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ को हम लेंगे पाई r² एच लेंगे। इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम का मतलब होता है ये बाहर वाला जो वॉल्यूम है, रेडियस है, पाई r² एच। हाइट दोनों का सेम रहेगा क्योंकि एम्बैंकमेंट साथ ही साथ ऊपर जा रहा है। तो ये होगा पाई r1² I'll write h1 r1² h1 minus pi r² of course minus pi r2² या फिर r2 नहीं कहेंगे क्योंकि अंदर का रेडियस और वेल का रेडियस सेम है, इसीलिए मैं इसको पाई ही r ही लिखता हूँ। 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, बिकॉज रेडियस ऑफ द वेल और ये अंदर का रेडियस सेम है, मगर हाइट जो है वो h1 है, इसलिए मैं h1 लिख देता हूँ क्योंकि दोनों साथ साथ ही अंदर की तरफ का जो है इस तरह से, ये आकार कैसे होगा, ये इस तरह से आकार होगा, बाहर का जो आकार होगा वो इस तरह का आकार होगा और ये गोलाकार जो है वो सिलेंडर शेप में बढ़ता चला जाएगा। सो पाई r1² h1 माइनस पाई r² h1। तो इसको अगर आप लोगे तो यू कैन टेक पाई कॉमन हियर, तो दिस विल बी इक्वल टू r² h इज इक्वल टू, हियर यू कैन टेक पाई h1 कॉमन। आप यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हो, पाई h1 कॉमन ले सकते हो। तो ब्रैकेट के अंदर बच जाता है r1² माइनस r²।
ये बच जाता है ब्रैकेट के अंदर. What I done is pi is common, h1 is common, so pi is common, h1 is common I have taken here. तो बच्चों यहाँ पर पाई और पाई क्या होगा, कैंसिल होगा और यहाँ पर होगा आर स्क्वायर एच. तो और एक स्टेप मैं यहाँ पर करना चाहूँगा. दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर एच इंटू एच वन, और दिस इज वॉट आर वन स्क्वायर माइनस आर एंड माइनस आर स्क्वायर. दिस आई कैन राइट इट एज आर वन स्क्वायर प्लस आर and this is r1 minus r. What does it mean? A squared minus b squared is a plus b, a minus b. First term square minus second term square is first term plus second term, first term minus second term. So this r stands for radius of the well, and that is equal to how much? 3 by 2 multiplied by 3 by 2, because radius क्या है यहाँ पर 3 by 2 है. और हाइट h स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ द वेल. हाइट ऑफ द वेल है बच्चों 14 मल्टी इज इक्वल टू h1. h1 हमको ढूंढना है बच्चों. h1 इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट हमको पता नहीं है. r1 प्लस r, r1 प्लस r आप देखिए. r1 मीन्स व्हाट, 1.5 प्लस 4 दैट इज 5.5 प्लस r is the radius of the well, that is 3 by 2, or I can write it as 1.5, and this is r1 minus r, that means what, 5.5 minus 1.5, 5.5 minus 1.5. So this, if I simplify children, 3 by 2 into 3 by 2 into 14 is equal to h1 into 5.5 plus 1.5. Just here it will be equal to how much, 7. 5.5 और 1.5 कर दोगे तो कितना होगा, 7 होगा. 5.5 में से 1.5 निकाल देंगे तो कितना होगा, 4 होगा. कितना होगा, 4 होगा. Now if I transpose everything to the left hand side, अगर मैं सबको ट्रांसपोज कर दूँ इधर, then what will happen, मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो क्या होगा, 3 by 2 multiplied by 3 by 2 multiplied by 14 multiplied by 1 by 7 multiplied by 1 by 4 is equal to h1. मैंने एवरीथिंग क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया. तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर. लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर. 7 1s are 7 I will get here, 7 2s are 14 I will get. Okay, then again what I am going to get here, 2 1s are 2 I will get, 2 2s are 4 I will get. Now is it possible to simplify? No sir. 3 into 3 is 9, 2 into 2 into 2 is 8. So h1 is equal to 9 by 8. And children, for a class 10 student, I should not tell you how to divide 9 by 8. It's very simple. 8 1s are 8, carry 1, then 10, again 8 1s are 8, carry 2, then 16, 8 2s are 16, and then 8 5s are 20. So finally what answer you are going to get is height of embankment. अगर आपको चाहिए तो height of embankment is 1.125 meters. Height of embankment is 1.125 meters. So children, that's all here. We have taken जानबूझ के मैंने दोनों वीडियो सेम लिया वेल वाला. एक बार यहाँ पर इस प्रॉब्लम में वेल की मिट्टी निकाल के क्यूबॉइड शेप में किया है, और अगली बार इसी वेल का मिट्टी निकाल के यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में उसको किया है. हियर द अर्थ डगआउट इज इन द फॉर्म ऑफ पुट इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड. हियर अर्थ डगआउट इज पुट इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. दैट्स ऑल. It is a hollow cylinder we can consider. Just we can think of it is just like a hollow solid cylinder. Hollow solid cylinder. That means just like a inch thickness will be there for that cylinder. That's all.